جو زیادہ تر جو لاشیں ہیں وہ سیکنڈ فلور سے ملی، کیونکہ چیف فائر افسر بھی یہاں پہنچے. ان کا کہنا ہے کہ جو فیکٹری کا جو مرکزی ایک ہی رستہ تھا جہاں تالا لگا ہوا تھا، جبکہ جو چھت پر جان بچانے کے لیے لوگ بھاگے تھے سیکنڈ فلور پر، وہاں بھی 2 دروازے ہیں، وہاں بھی تالا تھا، جس کے باعث دم گھٹنے کے باعث جو وہاں پھنسے ہوئے افراد تھے وہ بے ہوش ہوتے گئے اور جلستے چلے گئے. اب تک جو ہے 3 سگے بھائیوں سمیت جو عثمان آباد کے رہائشی تھے اس سمیت 10 افراد جو ہے مکمل طور پہ جاں بحق ہو چکے ہیں. ریسکیو ٹیمیں ابھی بھی سرچنگ کر رہی ہیں، جبکہ پولیس کا عملہ بھی یہاں موجود ہے، جہاں مکینوں کی مدد سے مزید جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہے یہاں کتنے لوگ پھنسے تھے. جبکہ فائر افسر کا کہنا ہے کہ یہاں فیکٹری مالکان کی جانب سے کتنے ملازمین تھے ان کی جانب سے ابھی تک تعداد نہیں بتائی گئی، جبکہ اطراف کے جو فیکٹری کے ملازمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں بچے بھی کام کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، افضل ہمیں آگاہ کریں کہ کراچی کرنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں آگ جو لگی تھی اس کو بجھا دی. کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس جھلسنے والوں میں 2 سگے بھائی بھی تھے اور ان کے جو والدین ہیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہی راستہ تھا اور جو راستہ وہاں پر موجود تھا باہر نکلنے کا اس پر بھی تالا لگا تھا. وہ کہہ رہے سامان نکالو، ان کو باہر نکالو، ہمیں دھکے دے دے کے باہر نکال دیا اور سامان بچوں کو نکالو، اوپر سے انہوں نے تالا ڈال دیا، بند کر دیا. اندر کتنے لوگ ابھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ، میں نے چوکیدار کو بولا مجھے چابی دو، میں جا رہی ہوں اوپر. آپ کے کتنے لوگ یہاں؟ ایک ہی یہاں پہ سیٹ کمپنی نہیں چلا پائے گا، ہمارا بھائی ادھر دے گا زندہ. یہ ابھی تک 2 گھنٹے ہو گئے لوگوں نے ابھی تک بھائی نہیں نکالا. میرا بھائی بہت زیادہ لگی ہوئی آپ اور بتانے بہت سارا بندے اندر ہیں. فائر بریگیڈ کو خود فون کر کے تھک گئے، کوئی بھی نہیں پہنچا. ان کو بلانے بندہ گیا ہے موٹر سائیکل پہ، جس کا بھتیجا اور بھائی اندر تھے، بچے بھی اندر تھے، کام کرتے تھے. باہر کوئی نہیں نکل پایا. ابھی نکالے گئے 3 بندے صحیح سلامت لیکن بہوش ہیں، ایک ہی ٹانک. تو یہ کچھ اینیشن بھی ان میں شامل تھے. اس کے علاوہ وہ 2 سگے بھائی ان کے اہل خانہ بھی اس میں موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ہی دروازہ تھا باہر نکلنے کا، لیکن اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا. اور دیگر افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا عملہ تاخیر سے پہنچا. افضل آپ کی جانب آؤں گی، فائر بریگیڈ کا عملہ تاخیر سے کیوں پہنچا؟ کیوں اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا جس سے اب تک کافی لوگ جھلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو فائر بریگیڈ جو ضلع کورنگی ہے وہاں کا جو فائر اسٹیشن ہے وہ غیر فعال نظر آتا ہے. تاہم پولیس تو یہاں پہنچی، پولیس نے فوری طور پر جو متعلقہ جو امدادی ہیلپ لائن ہوتی ہے وہاں فوری فون بھی کیا، یہاں کے مکینوں نے بھی فون کیا، لیکن یہاں بر وقت جو فائر بریگیڈ کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہ پہنچ سکی. دور سے فائر بریگیڈ آئی، ٹائم لگا کیونکہ شہر میں ٹریفک بھی ہوتا ہے، جس کے باعث جب تک فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی پہنچی تو آگ جو ہے پوری طرح فیکٹری میں پھیل چکی تھی. مزید گاڑیوں کو طلب کیا گیا مختلف شہروں سے، کیونکہ جو کورنگی اور ضلع ملیر میں جو فائر اسٹیشن ہے وہ غیر فعال ہے، وہاں فائر بریگیڈ موجود نہیں. اگر قریب میں فائر اسٹیشن موجود ہوتا تو یقیناً طور پر فوری طور پر 3 سے 4 فائر اسٹیشن پر سے جو گاڑیاں کھڑی تھیں فائر ٹینڈر وہ پہنچتی تو آگ پر یقیناً طور پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکتا تھا. جی ٹھیک ہے افضل، ساتھ ہی رہیے گا. نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر، جیسے کہ افضل بھی بتا رہے تھے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ تاخیر سے پہنچا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار کراچی میں آگ لگتی ہے، فیکٹریز میں، گھروں میں آگ لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا عملہ کافی تاخیر سے پہنچتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انتظامیہ نہیں پوچھتی ان سے؟ کون عمل درآمد کروائے گا ان پر؟ دیکھیں، ہماری شہری انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے ہیں وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں. کراچی میں کوئی عمارت گرے یا کسی جگہ پر آگ لگے، اس جگہ پر بھی جہاں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے تاحال نہ ہی یہاں پر کوئی ڈی سی کورنگی پہنچا ہے، نہ کمشنر کراچی کی ٹیم پہنچی ہے. یہ جو ڈومین ہے یہ کمشنر کراچی کا اور ان کی ٹیم کا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے انتظامات وہ چیک کریں کہ آیا انہوں نے ایگزٹ کا راستہ بنایا تھا. کمشنر کراچی کی بات کی آپ نے نذیر شاہ، تو یہ صبح سے ہی آگ لگی ہے، تو کمشنر کراچی اس وقت موقع پر پہنچے؟ دیکھیں، نہ کمشنر کراچی یہاں پر ہمیں نظر آئے، نہ ڈی سی کورنگی نظر آئے. حالانکہ کورنگی مہران ٹاؤن میں ان کے دفتر سے شاید چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ فیکٹری ہے، لیکن کوئی متعلقہ ادارے کا کوئی شخص حکام نظر نہیں آیا. اسی طرح ابھی ہمارے پاس مزید یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ یہ لاشیں جہاں جنہ اسپتال پہنچائی جا رہی ہیں اور وہاں پر بھی کوئی سینئر افسر موجود نہیں ہے. 13 لاشوں کو اب تک پہنچایا جا چکا ہے. تو یہ صورتحال ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور ایسے موقع پر تمام جتنے ادارے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آگ لگی تو ریسکیو کا تو کام ہے وہاں پر پہنچنا، جو فلاحی ادارے ہیں. لیکن
جو پولیس اور رینجرز وہاں پر ابھی رینجرز بھی وہاں پہنچ چکی ہے, انہوں نے اس جگہ کو پورا کارڈن کر دیا ہے. یہ بڑا سانحہ ہو چکا ہے, کوئی 1 2 یا 4 نہیں بلکہ 13 گھروں سے یہ جنازے اٹھیں گے. 13 افراد ہیں, 2 سگے بھائی اس کے اندر شامل ہیں. چھیپا اور عیدی کا ایک رضاکار اس کے اندر جو ابتدائی جو ریسکیو کا عمل جاری تھا اس کے اندر وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں وہ بھی جھلسے, ان کو بھی بے ہوشی کی حالت میں جنہ اسپتال منتقل کیا ہے. تو یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ جن اداروں کا کام نہیں ہے, جو فلاحی ادارے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے, بے ہوش بھی ہو رہے, لیکن جو سندھ سرکار ہے صرف ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فلاحی ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن جن کا کام ہے وہ اس وقت اسپاٹ پر نہیں پہنچتے. افضل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. افضل, کیونکہ آپ جائے افضل سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. نذیر آپ بتائے گا, کچھ کہہ رہے تھے آپ. بالکل, دیکھیں جو سندھ سرکار کے ماتحت جو ادارے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے جو ذمہ داری صرف اور صرف جو آپ کی موجودہ جو رولنگ گورنمنٹ ہو جس کے ماتحت تمام ادارے کام کرتے ہوں, یہ ان کی آتی ہے. اس کے اندر جو میٹروپولیٹن کا سب سے اہم محکمہ ہے, کیونکہ انہی کے ماتحت فائر بریگیڈز بھی ہوتی ہیں اور تمام جتنی بھی سہولیات ہوتی ہیں, اسپتال ہے, یہ سب سندھ گورنمنٹ کے ماتحت آتے ہیں. آپ فائر بریگیڈ کی حالت جا کر دیکھ لیں, کبھی ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے, کبھی وہ ٹیکنیکل طور پر وہ چل نہیں سکتی. اگر 20 فائر بریگیڈ کھڑی ہوئی ہیں تو 8 ورکنگ میں ہوتی ہیں. تو کراچی شہر جو 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, یہاں پر ہمیشہ جب تک کوئی ایسا بڑا سانحہ نہیں ہو جاتا کوئی جاگتا نہیں ہے, اور وہ بھی سانحہ جب 2-4 دن 5 دن گزرتے ہیں, ایک تحقیقاتی رپورٹ بنتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے سب سو جاتے ہیں اور ایک نئے سانحے کا انتظار کرتے ہیں. ہم چونکہ کرائم رپورٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, تو ہم نے آج تک ہر جگہ یہی دیکھی ہے کہ جتنے بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں غفلت اور لاپرواہی تو ضرور ہوتی ہے جس جگہ پر یہ حادثہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ متعلقہ ادارے جیسے کہ فائر بریگیڈ ہے, ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیر سے پہنچے. اگر یہ وقت پر پہنچ جاتے تو شاید جو اندر پھنسے ہوئے مزدور تھے ان کو ایک امید ہوتی, کیونکہ جس طریقے سے ہمیں پتہ چلا ہے, ایک پولیس نے بتایا کہ اندر جو مزدور تھے جو دوسری منزل تھی جہاں پر سب سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ امید ہار گئے کیونکہ انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کوئی بچانے آ رہے. امید ہارنے سے اور سفیکیشن سے, دم گھٹنے سے جس طریقے سے یہ ہلاک ہوئے, جاباک ہوئے ہیں, ایک ایک کر کے ان کی لاشوں کا نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. اور سب سے تشویشناک بات یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر مزید افراد بھی موجود ہیں جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اور ہماری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خیر تو نذیر, ان کو نکالنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں؟ دیکھیں وہاں پر بہت زیادہ دھواں بھرا ہوا تھا, اور جب بھی کہیں پر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اندر حد نگاہ تک کچھ نظر نہیں آتا, آپ کو ہاتھ قریب سے بھی نہیں دکھائی دیتا, نہیں سمجھ میں آتا. تو اس کے لیے اگر آپ کا ایگزٹ ڈور ہو یا پچھلی طرف سے اس جگہ کو توڑ دیا جائے, کیونکہ ریسکیو عمل جو کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ان کو اگر کوئی جگہ توڑنی بھی پڑے تو توڑ دیتے ہیں, لیکن چونکہ بند جگہ, ہال نما جگہ, اگر یہ کھلی جگہ ہوتی تو شاید ایسا واقعی پیش نہیں آتا اور دھواں ویسے ہی نکل جاتا. یہ تو بند کمرے میں ہال میں دم گھٹنے سے یہ تمام ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو اندر ظاہر سی بات ہے جو بھی ریسکیو والا جا رہا ہے یا تو وہ خود تشویشناک حالت میں واپس آ رہے ہیں, تو ریسکیو عمل میں ابتدائی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس وقت بھی سیڑھی یا اسٹارکل کے ذریعے جو اوپر جا کر دوسری منزل پر ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ مزید صورتحال یہاں پر کیا بنتی ہے, کیونکہ تمام ریسکیو ادارے یہاں پر اپنے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نذیر, ساتھ ہی رہے گا. اسپتال کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے آصف خان, ان سے مزید جانتے ہیں. آصف کہیے گا, کیونکہ اسپتال میں زخمیوں کو بھی لایا گیا ہے, ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ ہاں جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں جناح اسپتال کے منشی ہوں, اور جہاں پر مردہ خانے میں اس وقت وہ تمام افراد جو اس پہ جھلسے ہیں ان کو مرحلہ وار یہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جا رہا ہے. یہاں کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, خاص کر وہ افراد جن کے پیارے اس واقعے کے اندر جاباک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں, کیونکہ اب تک متعدد افراد ایسے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پائی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اس واقعے میں اب تک جو ہلاک ہوئے ہیں 13 افراد جاباک ہیں, جبکہ 3 سے 4 افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں تاحال زخمی ہیں جن کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جو اس وقت زیر علاج ہے ان میں سے 2 افراد کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. تاہم اس وقت جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اپنے پیاروں کو کی شناخت کے لیے جناح اسپتال کے باہر آئے ہیں.
ठीक है आसिफ, हमें आगाह कर रहे हैं कि ज़ख्मियों को भी यहाँ पर लाया गया है और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 18 अफराद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगी थी। आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में अब तक झुलस कर 18 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं। उनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं और जिनके अहले खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक ही दरवाज़ा मौजूद था बाहर निकलने के लिए, लेकिन उस पर भी ताला लगा था। काफ़ी गमगीन है अहले खाना और ऐसे में फैक्ट्री में कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। लेकिन फायर ब्रिगेड अमले की बात की जाए तो हमेशा की तरह वो ताख़ीर से पहुंचा है और अमले में कमी भी दिखाई दे रही है। लेकिन हुकूमती अहदेदार या इंतज़ामिया या कमिश्नर कोई भी यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचा। माजी से कोई सबक नहीं सीखा गया, कोई इंतजामात नहीं किए गए और इसी का नतीजा है कि आज ये फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में 13 मजदूर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू का अमल जारी है लेकिन आग बुझाने में दुश्वारी का सामना भी, अब बुझाया तो गया है लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। नज़ीर शाह से मज़ीद मालूमात लेते हैं। नज़ीर शाह, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत के बारे में अपडेट कीजिए उन नाज़रीन को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, और ये वाक़या जब पेश आया कितना वक्त लगा आग बुझाने में? देखें, ये वाकया तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10:15 बजे का ये वक्त था जब आग लगी थी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को कॉल की गई, लेकिन वहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो देर से पहुंचा था। अगर फौरी तौर पर पहुंचता तो शायद ऐसा वाकया पेश ना आता या शायद कम जाने जाती। और हर मर्तबा की तरह यही वर्ड जो शायद का जो लफ्ज़ है ना, इसको इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमारे इदारे इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और हर जब भी कोई सान्या होता है तो इस तरह की सूरत सामने आती है। अभी भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस वाक़े का जो है नोटिस लिया गया है, उनकी जानिब से कमिश्नर कराची से भी और लेबर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सबसे पहले पूछा जाए कि जो लेबर डिपार्टमेंट है ये अपना काम कैसे करता है, कितनी फैक्ट्रियों का आज तक इन्होंने सर्वे किया होगा। रेजिडेंशियल इलाकों में भी जो फैक्ट्रियां होती है वो भी खुली होती हैं, लेकिन रिश्वत लेकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती है। और जो लेबर डिपार्टमेंट है, तमाम मुतल्लिका इदारे जो जाकर अगर फैक्ट्रियों का सर्वे करें और देखें कि अगर कोई सान्या पेश आ जाए, देखें फैक्ट्री के काम करते वक्त कुछ भी हो सकता है, तो अगर वहां पर जाकर चेक करें कि एग्जिट वहां पर डोर मौजूद है, कोई भी इमरजेंसी सूरत के लिए वहां पर जो आग बुझाने के हालात मौजूद हैं, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे तब तो समझ में आती है। लेकिन ये तमाम चीजें हम दस्तावेजात में तो नजर आती हैं लेकिन हकीकी तौर पर या प्रैक्टिकल तौर पर इसको नहीं किया जाता। जिस वजह से ये हादसा पेश आते हैं और जब भी एक हादसा रोनुमा होता है नया, तो फिर उस हादसे के ऊपर काफी शोर मचाया जाता है, ताज़ियत भी की जाती है और कुछ अर्से बाद फिर उसको बुलाकर एक नए सानी का इंतजार किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि शहरी इंतजामिया, जिला इंतजामिया, फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है उसको ठीक करे। अगर 15 का जो रिस्पांस टाइम था 1 घंटे आधे घंटे तक था, अगर वो 7 मिनट या 10 मिनट तक आ सकता है तो फायर ब्रिगेड का क्यों नहीं आ सकता? अगर ये अपने आप को ठीक करना चाहें, वज़ीर आला सिंध नोटिस ले कमिश्नर कराची का डोमेन है, उनके मातहत ये मेट्रोपॉलिटन इदारे आते हैं, उनका काम है कि इन इदारों को ठीक करे। इस वक्त 13 जाबाक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 सगे भाई हैं, नीचे खवातीन उनके घर वाले रो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे ऊपर मौजूद है, उनका शौहर, उनका भाई ऊपर मौजूद है और बार बार यही कहा जा रहा है कि उनको बचाया जाए और ये भी बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो उनको नीचे भेजा गया। वो 13 तो आप बता रहे हैं ना, वो मजदूर हैं जो जाँ बहक हो गए हैं, जो लोग झुलसे हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी हालत कैसी है? देखें, जो रेस्क्यू अमल के दौरान 2 रेस्क्यू रजाकार जो ईदी और छिपा से जिनके ताल्लुक है वो झुलसे थे और तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनको ज्यादा चोटें नहीं आई थी लेकिन वो बेहोश हो गए थे, जबकि मजीद 2 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि जिन्हें अस्पताल उनको पहुंचाया गया, उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और इस वक्त जो वहाँ पर है इमरजेंसी का सिलसिला, इमरजेंसी वहाँ पर नाफिज कर दी गई थी। तमाम वाटर हाइड्रेंट पे भी फौरी तौर पर ये कह दिया गया था। 15 वाटर टैंकर वहाँ से भिजवा दिए गए थे। शेरपा और लांडी तमाम जो वाटर बोर्ड की जानिब से वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। लेकिन ये तमाम वो बातें जो किसी सान्या होने के बाद की होती हैं, सान्या होने से कबल कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर ऐसा वाक़या पेश आ भी जाता है तो कम से कम नुकसान हो और कम से कम जानी नुकसान हो। जी ठीक है, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रिगेड का अमला जो है वो फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया था। आग बुझाने जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें की गई हैं।
फायर टेंडर्स हों, पानी हो, स्नॉर्कल हो, शवल हो, लेकिन बुनियादी तौर पर जो दिक्कत आई वो उस फैक्ट्री के अंदर चूँकि गालिबन सेफ एग्ज़िट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और अब आग को बुझा दिया गया है, लेकिन कूलिंग का प्रोसेस जारी व सारी है। जो रिलीफ का बॉडीज़ को निकालने का अमल है वो इस वक्त चल रहा है। जो इब्तदाई इत्तलात हैं, मालूमात है, उसके तहत तकरीबन 21 अफराद हैं जो कि इस फैक्ट्री के पहले फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें से अभी तक 10 बॉडीज़ हैं जिनको निकाल लिया गया, जिसको मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उनकी दम घुटने से डेथ हुई। तो मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगा उन लवाहिकीन से जिनके प्यारे उनसे आज बिछड़ गए, और ये कि पुलिस और तमाम तहकीकाती इदारे, फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किस वजह से वो आग लगी, आग फैली, क्या प्रॉपर वहाँ पर फायर एग्ज़िट था, नहीं था। इन तमाम के ऊपर जब प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट की तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मैं फ़िलहाल लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और मरूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस तरह की मंसूबाबंदी कर सकें इन फैक्ट्रियों के हवाले से कि इन फैक्ट्रियों के अंदर प्रॉपर फायर एग्ज़िट्स हों, ताकि इस तरह का अल्लाह ना करे अगर मुस्तक़बिल में कोई वाक़या हो तो उसको काबू पाया जा सके और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको आसानी से निकाला जा सके। अब मैं आता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। कल पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बशमूल वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म, उन्होंने एक जश्न मनाया तहरीक इंसाफ के 3 साला इक़्तिदार के हवाले से। मैं PTI के 3 साला इक़्तिदार पर पाकिस्तानी कौम से ताज़ियत करना चाहूँगा कि जितना बुरा हाल पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का PTI ने किया है, मैं समझता हूँ आप सब उससे वाकिफ़ हैं। ये वो PTI है जिसने 25 जुलाई 2018 एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो असल इशू है इस वक्त का वो ये है कि फैक्ट्री में लगी हुई आग पर तो काबू पाया गया, लेकिन इस आतिश ज़दगी के नतीजे में 13 मजदूर जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद झुलस गए हैं और आग को बुझा दिया गया। यहाँ से लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। तो आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगी है और केमिकल बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिस पर अब आग को बुझा दिया गया है। रेस्क्यू अमला ताख़ीर से पहुंचा और अब तक झुलस कर 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं। और उनके अहले खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता एक मौजूद था, एक गेट मौजूद था, उस पर ताला था और काफ़ी गमज़दा दिखाई देते हैं अहले खाना। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइए एक बार फिर से सारा वाक़या। हाँ बिल्कुल, देखें आग लगने के बाद जो एनी शादीन थे जो खुद भी उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि एक तो ऊपर ताला लगा दिया गया, अंदर अफराद मौजूद थे, और दूसरा उनको नीचे भेज दिया गया। कोई रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। नीचे हज़ारों कतार सब रो रहे थे। इस जो भी ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद नीचे मौजूद है। 2 भाई तो जान से जा चुके हैं। उनका कहना है कि एक भाई और अंदर मौजूद है। इस तरह एक ही खानदान के 5 अफराद भी इसमें शामिल थे और यहाँ पर रेस्क्यू का जो अमल है वो इस वक्त किया जा रहा है। तमाम जितने भी इदारे हैं वो अंदर मजीद जो अफराद हैं उनको तलाश कर रहे हैं। नज़ीर, एक बात बताइएगा, जब केमिकल से आग लगती है तो वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती, उसके लिए फोम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई थी उनके पास ये आलात मौजूद थे, फोम मौजूद था? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो यही बताया गया था कि ये जितना पानी पर आग पर पानी मार रहे थे उतना आग भड़क रही थी। इसका मतलब यही था कि फोम मौजूद नहीं था। यहाँ पर स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी मुझे फोम पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, वरना जहाँ पर रेस्क्यू का अमल चल रहा हो तो वहाँ पर फोम नजर आता है। हो सकता है इन्होंने फोम से आग बुझाने की कोशिश भी की हो, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पर फोम नजर नहीं आ रहा। मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, नारकल, रेस्क्यू इदारे, तमाम
मुसलसल यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनकी जाने से रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। जी अच्छा, कुछ तंग रास्ते होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी कुछ इमारतों की ऐसी होती है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू है उसको मुश्किल आती है। यहाँ इस इमारत की ज़रा साख्त के बारे में बताइएगा और क्या उसकी वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात आई? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक मजीद अपडेट दे दूं कि लाशों की तादाद 14 हो चुकी है। उस वक्त 14वीं लाश निकाल ली गई है और यहाँ से उसको निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर जो अमला रेस्क्यू का उसकी जानिब से अभी लाश को निकाले गए और मजीद ये बताया गया है कि अंदर जो और अफराद हैं उनकी भी मौजूदगी की इतला बताई जा रही है। तादाद नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अंदर 20 से 25 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 14 लाशों को अब तक निकाल लिया गया है और जो मजीद रेस्क्यू का अमल है वो इस वक्त जारी है। ठीक है नज़ीर, हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, अब बन गए हैं, काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर बता रहे होते हैं मैंने यहाँ का दौरा किया, ये मसला था, मैंने ये मसाइल हल किए। तो आज सारे इदारे उनके अंडर आते हैं, उनको नहीं पहुँचना चाहिए था यहाँ पर? देखिए, मुर्तज़ा वहाब को बिल्कुल यहाँ पहुँचना चाहिए था, पहुँचना तो दरकिनार उनकी जानिब से अभी तक कोई बयान भी सामने नहीं आया, ना उनकी जानिब से अफसोस का इज़हार किया गया, ना ही ऐसा कोई हुक्मनामा सामने आया कि उनकी जानिब से फौरी तौर पर कहा गया हो कि ये जो मुतल्लिका इदारे जिसके अंदर काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हो, वो पहुँचे। तो जहाँ अगर वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। अच्छा नज़ीर, हमने नाज़रीन को भी अपडेट कर दें कि यहाँ मुर्तज़ा वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी जारी है। कुछ इब्तिदा में जो है उन्होंने इस फैक्ट्री में जो आतिशज़दगी है उसके हवाले से उन्होंने बात भी की है। मैं सिर्फ आपसे ये बताइएगा ज़रा कि जो यहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लेना किस महकमे के सुपुर्द होता है और वो अपना काम अगर प्रॉपर करता तो आज ये वाक़या शायद पेश ना आता, हम अगर ये सेफली ये कह सकते हैं? देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन जो शोबा जो महकमा केएमसी के अंडर में ये तमाम जो है ये शोबे आते हैं और कमिश्नर कराची जो है इन तमाम का निगरान होता है। इसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट है और जो दीगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उन तमाम का काम ये है कि जैसे लेबर डिपार्टमेंट जाए और जाकर फैक्ट्रियों का जायजा लेके उनके जो डोमेन में जो मजदूर आते हैं, मजदूर तबका उनके मातहत आते हैं, उनको किस हालत में रखा गया है। अगर उनके मातहत जो मजदूर हैं वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। इस वक्त जहाँ स्नार्गल लगी हुई, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दीवार को तोड़कर स्नार्गल के जरिए अंदर जो है वो रेस्क्यू के हुकाम दाखिल हुए हैं। इसी तरह जो कमिश्नर कराची है उनके मातहत दीगर इदारे भी हैं जो जाकर तमाम जो फैक्ट्रियाँ उनका विजिट करते हैं और ये देखा जाता है कि नंबर 1 फैक्ट्री की जगह पर काम है वो रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल। दूसरा ये चेक किया जाता है कि कमर्शियल के अंदर कितने मंजिलों की इसको इजाजत है और रेस्क्यू के लिए एग्जिट डोर सीढ़ियाँ क्या अगवी रास्ते पर दी गई हैं। तीसरा ये देखा जाता है कि जिस जगह पर आग लगी है या जिस हॉल में भी ये CMT का या दूसरा काम होता है वहाँ पर आग बुझाने के हालात मौजूद हैं, ताकि अगर फौरी तौर पर आग लगे तो उसको फौरी तौर पर अपनी मददात के तहत भी बुझाया जा सके और वही आग बड़ी होती है, फिर ऐसे सानियात जन्म लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जितनी भी ये सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद जो ज़िले इंतजामिया है, कमिश्नर कराची, उनके मातहत आते हैं और ये जिम्मेदारी भी उन्हीं पर बनती है कि ऐसे सानियात को रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएँ और अगर इकदाम नहीं किए जाते तो आप फिर समझ जाएँ कि इसका जिम्मेदार कमिश्नर कराची है और वज़ीर आला सिंध है। जी अच्छा नज़ीर, आपने बताया कि एक और शख्स जाँ बहक हो गया, एक और मजदूर, ये कहेगा कि इस वक्त ऐसी कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं कि फैक्ट्री के अंदर मजीद कितने लोग हो सकते हैं? अंदर मजीद जो अफराद हैं बताए जा रहे हैं कि अंदर मजीद तकरीबन 6 से 7 लोगों की मौजूदगी की इतला हो सकती है। अंदर इस वक्त खुद मैं इस शू के नीचे मौजूद हूँ और मुझे ऊपर आमदोरफ्त नज़र आ रही है और बिल्कुल एहतियाती तरीके से दवाई का इस्तेमाल करते हुए अंदर जा रहे हैं। धुएं की एक लेयर भी बाहर आ रही है। देखिए, आग तो बुझा दी गई है लेकिन अच्छा नज़ीर हमारे साथ ही रहेगा, आप हमें अपडेट रखे हुए हैं सारे मामले के हवाले से, नज़र रखें आप। अफजल परवेज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। अफजल परवेज़, आपके पास क्या मालूमात है इस सानहे को लेकर? देखा जाए तो इस वक्त जो है रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला जो है हर एक जगह पर जाकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ नजर आता है। सर्चिंग का अमल जारी है क्योंकि इसी 1000 गज पर 2 मंजिला जो फैक्ट्री है यहाँ 25 से ज्यादा अफराद के फंस होने की इत्तलात पर जो है
जो दी गई थी, उसके बाद अब तक जो है 13 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिसके बाद मजीद जो लोग फंसे हुए थे, जो झुलस गए हैं, उनको देखने के लिए इस वक्त जो मुश्किलात का उनको सामना है, तपिश के साथ साथ धुआं अभी तक अंदर मौजूद है। तमाम हालात वो तमाम चीज़ें मुताल्लिका रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड होने के पास न होने के बायस जो है उनको मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिका इदारों की जानिब से जो है इस वक्त जो हिकमत अमली अपनानी थी वो नहीं अपनाई गई, क्योंकि इधर इस बिल्डिंग को देखा जाए तो एक ही रास्ता था, जिसके बायस जो है खिड़की तोड़कर रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। तमाम जिस खिड़की को भी तोड़ते थे वहाँ सेकंड फ्लोर पर जो लोग भागे अपनी जान बचाने के लिए दम घुटने के बाद बेहोश हुए। तमाम देखा जाए तो उनको बचाने के हवाले से जो एक ही रास्ता था जिस पर अच्छा अफजल जैसे कि 13 मजदूर थे पहले जहां भाग, फिर एक मजीद लाश निकली है, हमें नजीर शाह ने अपडेट किया, तो जाहिर है जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे जो बाहर निकले हैं उनसे पता चल सकता है कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं जिससे सही तायुन हो सके अंदर मौजूद अफराद का। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जितने भी मजदूर निकले हैं उसमें झुलसी हुई हालत में निकले हैं। एक जख्मी था जो बिल्कुल बताने के काबिल नहीं था। तमाम बाकी अफराद की सिर्फ लाशें निकली हैं, मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे। उनकी निशान उनकी जो शनाख्त थी, यहाँ तो किसी के भाई ने घड़ी से शनाख्त किया, यहाँ फिर किसी ने अंगूठी से शनाख्त किया। देखा जाए तो वहाँ जो फैक्ट्री मालकान हैं वो गायब हो चुके हैं। अगर वो होते तो बाकायदा तौर पर बताते कि आज कितने लोग इस फैक्ट्री में मौजूद थे। अगर देखा जाए तो ये फैक्ट्री मुख्तलिफ शोबेजात पे थी। एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ गाड़ी के प्लास्टिक के पार्ट्स बनते थे। फर्स्ट फ्लोर पर केमिकल का गोदाम था। उसके साथ साथ देखा जाए तो सेकंड फ्लोर पर जो है ब्रीफ केस बनाने का काम होता था। ये मुख्तलिफ शोबेजात थे। तो देखा जाए तो यहाँ के मकीन बताते हैं कि ये मुकम्मल एक फैक्ट्री नहीं या मुख्तलिफ किस्म के काम हुआ करते थे। जी ठीक है, अफसर साथ रहिएगा। इसी मौके पर PTI MP फ़हीम खान यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। वगैरह बनते हैं ये उन रही है क्योंकि इसमें वो जाहिर सी बात है वो केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से जो ये आग भड़की उसके बाद जो सबसे पहले यहाँ पे जिसने रेस्क्यू किया वो के इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी थी जो यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने सारे काम किए। यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला था उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे। उनके पास जब इक्विपमेंट नहीं थे हम लोग पहुँचे, हमने काफ़ी चीज़ें की, फिर मैंने रब्ता किया अली जदी साहब से। KPT की जो गाड़ियां हैं वो भी आ चुकी है, पर मुझे अफसोस हुआ यहाँ पे कि अगर ये टाइम पे बर वक्त एक्शन होता, बर वक्त इनके पास इक्विपमेंट होता तो ये इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होती। मैंने कमिश्नर कराची से भी रब्ता किया, DC साहब अभी तक यहाँ आए नहीं है, DC है नहीं क्योंकि पुलिस भी आ गई, रेंजर्स भी आ गई, हम भी खड़े, हम क्या कर सकते हैं। जिन्होंने ऑर्डर्स देने जिनके पास अथॉरिटी है वो कहाँ है, वो इदारे ही नहीं है यहाँ पे। PTI के रहनुमा खान मीडिया से इन्होंने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि इक्विपमेंट मौजूद नहीं था फायर ब्रिगेड के पास। ये और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिम्मेदारान को आना चाहिए था वो भी यहाँ पर नहीं आए। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं जिना अस्पताल के बाहर और ज़ख्मियों को वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। अफजल कहिएगा, ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ और जिना अस्पताल की मोर्चरी में मौजूद हूँ, मुर्दा खाना, जहाँ पर इस वक्त जो लाशें हैं उनको यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। एक ही खानदान के 5 अफराद भी हैं इसके अंदर, जिसमें एक शख्स का ये कहना है कि उनके खानदान के तकरीबन 4 से 5 अफराद जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इनके भाई हैं, इनके बहनोई हैं और दीगर अफराद हैं जो इस वाक़े के अंदर जो है वो जाबाक हो गए हैं। तो इस वक्त जो है लोगों की काफी बड़ी तादाद है। यहाँ पर शनाख्त का अमल भी जारी है। इस वक्त 6 से 7 अफराद हैं जिनकी शनाख्त हुई है। इसमें फरमान है, फरहान है, हुसैन है और इन नामों से जो है उनकी शनाख्त हुई है। जबकि इसमें जो एक शख्स का कहना यह है इसके 2 सगे भाई हैं जिसमें फरमान और फरहान है, जबकि इसके चचा है अली और बहनोई है हसन, वो इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त जो है जिना अस्पताल में काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, खासकर वो अफराद जिनके प्यारे इस वाक़े के अबाक हुए हैं या जख्मी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मुतादिद अफराद जो हैं वो लापता हैं। तो उनके लवायतीन जो हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो आहो बका कर रहे हैं, रो रहे हैं और काफ़ी जो है वो दिलखराश मनाते हैं इस वक्त जिना अस्पताल में, क्योंकि वो लोग जिनके प्यारों का भी कुछ भी नहीं मालूम तो वो काफी परेशान दिखाई देते हैं यहाँ पे। और बाकी आसिफ आपने बिल्कुल कहा कि लवाहिकीन परेशान है जिनके अभी तक मालूमात नहीं मिल रही हैं। 3 लोगों को आपने कहा कि 2 सगे भाई और उनका चचा जिनकी शनाख्त हुई है, बकिया लोगों की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई। हाँ जी बिल्कुल, 7 से 8 अफराद हैं जिनकी शनाख्त हुई है। शनाख्त का अमल जो है वो यहाँ पर इस वक्त जारी है। सबसे पहले जो डेड बॉडीज हैं उनको इमरजेंसी में लाया जा रहा है और इमरजेंसी के बाद उन डेड बॉडीज को जो है वो मोर्चरी से यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो उस वक्त जो है
यहाँ पर को लाया जा रहा है, मरहला बार इनकी शनाख्त जो है वो हो रही है। 7 से 8 अपराध हैं अब तक जिनकी शनाख्त हो पाई है और दीगर की शनाख्त का अमल जो है वो भी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग झुलसे हैं उनकी हालत के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं और तादाद के बारे में बताइएगा कि इल्म है कि कितने लोग झुलसे हैं? लेकिन जो तादाद मालूम हुई है वो 3 अफराद की जो है वो तादाद मालूम हुई है कि 3 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में झुलसकर जख्मी हुए थे, जिनमें से जो है वो दो रेस्क्यू के, जिसमें एक फायर टेंडर के और एक जो है वो रेस्क्यू के थे। उनकी हालत तो खतरे से बाहर है। जो तीसरा शख्स है उसकी हालत अलबत्ता खतरनाक बताई जाती है और इस वक्त भी उनको तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो अस्पताल में है। तो इस वक्त लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, आसिफ हमें आगाह कर रहे हैं, अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ज़ख्मियों को यहाँ पर लाया जा रहा है जो कि झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं। और जाए हादसा पर मौजूद एनी शाहिदीन का क्या कहना था, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। मालूम नहीं, मैं हालांकि उसी आग वाली जगह से गुजर के गया हूँ, कुछ नहीं रहा, बैठे हुए चाय भी पी रहे थे हम। तो एकदम किसी ने ना लड़कों ने आवाज़ लगाई, आग लग गई, यहाँ पर आग लग गई। तो फिर हम उठ के भागे, देखा आग, छोटी सी आग थी, पहले बुझाने को हमने आग बुझाने वाले वो होते ना वो मारे, मगर उससे भी आग नहीं कंट्रोल में आ रही, बुझ ही नहीं रही थी, फर्क ही नहीं पड़ रहा था आग, और वो बढ़ते 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 बढ़ गई। 9-10 बजे लगी, 30-35 लोग अंदर है ऊपर डिपार्टमेंट में, वो शोर कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, मालिक भी नहीं आया। अभी तक ये यहाँ पानी लगा रहे, बंदे नहीं निकाल रहे अंदर से। कैजुअलिटी का अंदाजा भी हमें इसलिए नहीं है कि कोई यहाँ पे ऑन नहीं कर रहा है कि कितने लोग ऊपर थे। बहरहाल हमारा अपना ही अमला जो है सर्च कर रहा है। आग काबू में हो चुकी है, कूलिंग का अमल चल रहा है और दाखिली रास्ते इस इमारत में एक ही जीना था और उधर ही से जो फैक्ट्री वर्कर बता रहे हैं कि जो दाखिली रास्ता है वहीं पे आग थी और छत पे भी वर्कर ऊपर नहीं जा सके क्योंकि छत के जो डोर है उस पर भी ताला लगा हुआ था। यानी शाहिदीन की गुफ्तगू आपने सुनी, दाखिली और खारजी रास्ता एक ही था, इस वजह से भी खासी मुश्किल का सामना रहा। जब ये आग लगी तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बुझाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला कुछ ताख़ीर से पहुंचा और इसके बारे में फ़हीम खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका ये कहना था कि उनके पास यानी फायर ब्रिगेड के पास मुनासिब आलात नहीं थे, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी मज़ीद लोगों की अंदर मौजूदगी की भी इत्तलात हैं। कुल जो जान बहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 14 है और इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं, उनके एक चचा हैं। 7 से 8 अफराद की शनाख्त अब तक हो चुकी है जिन्हें अस्पताल कराची में, बकिया की शनाख्त का अमल जारी है।